Hello students, I am Vijay Veer, your English teacher. Today we are going to read 4th chapter of class 10th, A Question of Trust. First of all, the writer introduces with us the two sayings, or we should say proverbs. Sayings are proverbs. The first one is, you must set a thief to catch a thief. You can see clearly, I have underlined it. You must set a thief to catch a thief. It means that if you want to catch a thief, यदि आप एक चोर को पकड़ना चाहते हैं तो आपको चोर की तरह ही सोचना होगा. You must have to think like as a thief to catch him or her. The second saying which the narrator introduces, it is also said that there is honor among thieves. कि चोरों के बीच भी सम्मान होता है. Now he puts a question in front of us. Which saying does this story illustrate? यह कहानी कौन सी कहावत को या कौन सी कहावत की व्याख्या करती है, इलस्ट्रेट करती है? Read and find out. पढ़िए और पता लगाइए. Let's find out. Before reading the chapter, there are two questions. What does Horace Nimmo like to collect? And the second, why does he steal every year? Let's start the chapter now. Everyone thought that Horace Denby was a good, honest citizen. He was about 50 years old and unmarried, and he lived with a housekeeper who worried over his health. In fact, he was usually very well and happy except for attacks of hay fever in summer. Hay fever. Hay fever, as you can see, hay fever is a disease which affects nose and throat, caused by allergy to pollen or dust. Yes, you can see clearly. A disorder affecting the nose and throat caused by allergy to pollen or dust. It often occurs in summer season. We have been introduced in the story. हमें सबसे पहले होरस डेनबी के बारे में परिचय करवाया गया. Horace Denby was a good person. He was very respectable among the citizens. He was a respected citizen of the society. He was about 50 years old and was unmarried. He made locks. He was a wealthy person. He was living with a housekeeper, and the housekeeper worried over his health. In fact, he was usually very well and happy except for attacks of hay fever in summer. समर में उसे hay fever की समस्या हो जाती थी, जिसे हम सामान्य भाषा में जुखाम कह सकते हैं. He made locks and was successful enough at his business to have two helpers. Definitely he made locks. His business was to make locks, and he was very successful in his business, as he was having two helpers. Definitely he was very successful. Yes, Horace Denby was a good and respectable, but not completely honest. Yes, very important line. Horace Denby was good and respectable but not completely honest. Horace Denby बहुत अच्छा था, सम्माननीय था, लेकिन पूरी तरह ईमानदार नहीं था. 15 years ago, Horace had served his first and only sentence in a prison library. 15 साल पहले Horace ने एक लाइब्रेरी में, जेल की लाइब्रेरी में अपनी एकमात्र कैद बिताई थी. He loved rare expensive books. He loved reading books. Which type of books? Rare and expensive, जो कि बहुत महंगी और दुर्लभ, रेयर होती हैं. So he robbed a safe every year. And to buy those books, what did he do? He robbed a safe. वह एक सेफ को, एक तिजोरी को हर साल लूटता था. Each year he planned carefully just what he would do
stole enough to last for 12 months, and secretly bought the books he loved through an agent. Oh, what was his planning? He planned very carefully, and according to his plan, every year he robbed once, and he was very successful in his attempt of robbing a safe. And how much he robbed? He robbed enough टू लास्ट फॉर 12 months. वह इतना धन चुराता था कि एक साल तक उसका काम आसानी से चल सके. एंड ही बॉट द बुक सीक्रेटली, वो चोरी से, गुप्त रूप से पुस्तकों को खरीदता था. ही लव्ड थ्रू एन एजेंट. और कौन सी पुस्तकें? जिन्हें वो बहुत अधिक पसंद करता था और एक एजेंट के माध्यम से उन्हें खरीदता था. ही बॉट दोज बुक्स थ्रू एन एजेंट सीक्रेटली. नाउ, walking in the bright July sunshine, he felt sure that this year's robbery was going to be as successful as all the others. For 2 weeks he had been studying the house at Shotover Green, looking at its room, its electric wiring, its paths and its garden. Now, in the month of July, at the noon time, he was walking and he was very sure that this year's robbery was also going to be successful as all others. Means इस साल की जो चोरी थी उसकी, इस साल जो चोरी करने वाला था वो भी पहले वाली चोरियों की तरह पूरी तरह सक्सेसफुल होने वाली थी. और वो पूरी तरह श्योर था. श्योर क्यों था वो? लेट्स फाइंड आउट. देखिए, क्योंकि 2 वीक्स, 2 सप्ताह तक उसने उस मकान की, उस ग्रेंज की, ग्रेंज मीन्स ए बिग हाउस इन अ रूरल एरिया, एंड शोटोवर ग्रेंज, जैसा कि आप देख सकते हैं, दिस इज द नेम ऑफ दैट हाउस, शोटोवर ग्रेंज. एंड यू कैन ऑब्जर्व द फर्स्ट लेटर ऑफ शोटोवर, एस एंड जी इज कैपिटल. दिस इज अ नाउन. ये एक नाउन है, ठीक है. शोटोवर ग्रेंज. तो उसने पूरी बारीकी से उसको ऑब्जर्व किया था, उस शोटोवर ग्रेंज को, लुकिंग एट हिज रूम, इसके रूम्स को, इसके इलेक्ट्रिक वायरिंग्स, इसके पाथ्स, गार्डन्स, एवरीथिंग ही ऑब्जर्व वेरी माइन्यूटली. दिस आफ्टरनून द 2 servants who remained in the Grange while the family was in London had gone to the movies. In that Grange there were 2 servants who take care of that house. They had gone to enjoy the movies on that day, and the family often lives in London. Horace saw them go and he felt happy in spite of a little tickle of hay fever in his nose. He came out from behind the garden wall, his tools carefully packed in a bag on his back. When Horace saw them go out of the house, he became very happy. वो बहुत खुश हुआ. हालांकि उसे hay fever की समस्या थी, हल्की सी hay fever की समस्या थी. So after going out of the house, जब वो हेल्पर्स थे, जो सर्वेंट्स थे, जब वो घर से चले गए थे, उनके जाने के बाद वो दीवार के, गार्डन की वॉल के पीछे से निकल के आया. जो बगीचा था, जो गार्डन था हमारा, उसकी दीवार के पीछे से बाहर निकल के आया. हिज टूल्स केयरफुली पैक्ड इन ए बैग ऑन हिज बैक. और उसने अपने टूल्स बड़ी सावधानी से अपनी पीठ पर पैक कर रखे थे. There were about 15,000 pounds worth of jewels in the Grange safe. Yes, my dear students, 15,000 pounds worth of jewels in the Grange safe. उस ग्रेंज की सेफ में कितने कीमत के ज्वेल्स थे? How much the jewels cost which were in that Grange safe? 15,000 pounds. And if he sold them one by one, he expected to get at least 5,000. और यदि उनको एक एक करके बेचता है तो उसे कम से कम 5,000 पाउंड प्राप्त करने की आशा थी. एक्सपेक्टेड टू गेट, यहाँ पर आप देखते हैं एक्सपेक्टेड इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, मेन वर्ब. टू गेट, टू गेट, एक्सपेक्ट के बाद हम 2 + V1 लगाते हैं. कीप इन माइंड, छोटे छोटे पॉइंट्स आपकी बड़ी मदद करेंगे. इनफ टू मेक देम हैप्पी for another year.
There were three very interesting books coming up for sale in the autumn. Now he would get the money he wanted to buy them. इन द ऑटम सीजन, ऑटम के सीजन में बिक्री के लिए बड़ी ही इंटरेस्टिंग तीन बुक्स आने वाली थी. ही वांटेड टू बाय दोज बुक्स एंड नाउ ही वाज गोइंग टू गेट द मनी. He had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door on a hook outside. He put on a pair of gloves, took the key and opened the door. He was always careful not to leave any fingerprints. Means he was a very cunning person. He was very careful about not to leave any clue behind him. अपने पीछे अपनी चोरी करने के बाद वो कोई क्लू नहीं छोड़ता था. और इसके लिए उसने क्या किया, उसने हाउस कीपर्स को की को किचन के डोर के बाहर हुक के ऊपर टांगते हुए देख लिया. उसने अपने ग्लव्स पहने, चाबी को लिया एंड दरवाजे को खोला. A small dog was lying in the kitchen. It stirred, made a noise and moved its tail in a friendly way. There was a small dog in the kitchen, but it didn't bark at Horace Tenby. It just made a little noise and moved its tail. अपनी पूंछ को बड़े फ्रेंडली वे में हिलाया. All right, Sherry, Horace said as he passed. Horace जैसे ही वहां से गुजरा, उसने उसे क्या कहा? All right, Sherry. Sherry, सब ठीक है. All you had to do to keep dogs quiet was to call them by their right names and show them love. This is very important line about the character of Horace Tenby. Read it again. All you had to do to keep the dogs quiet was to call them by their right names and show them love. कि आपको कुत्तों को शान का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि उन्हें उनके सही नाम से पुकारिए और उन्हें प्यार दिखाइए, उन्हें प्यार जताइए. द सेफ वाज इन द ड्राइंग रूम. जो सेफ थी, जो तिजोरी थी, वो ड्राइंग रूम में थी. बिहाइंड अ रादर पुअर पेंटिंग, बहुत ही घटिया क्वालिटी की पेंटिंग के पीछे. Horace wondered for a moment whether he should collect pictures instead of books. Horace इसके पीछे बड़ा प्रभावित हुआ, उस पुअर पेंटिंग को देखकर बहुत प्रभावित हुआ और उसने सोचा कि क्या उसे बुक्स की बजाय पिक्चर कलेक्ट करनी शुरू कर देनी चाहिए. बट दे टुक अप टू मच रूम, लेकिन उन्हें बहुत ज़्यादा रूम स्पेस चाहिए. रूम मीन्स स्पेस, यहाँ पर रूम का मीनिंग स्पेस होगा. SPACE, space. In a small house, books were better. In a small house means he was living in a small house. जिस घर में रहता वो घर बहुत छोटा था. And books were better because they need little space. There was a great bowl of fruits on the table, and Horace felt his nose tickle. He gave a little sneeze and then put down his bag. He carefully arranged his tools. He had 4 hours before the servant returned. He knows all the things. वो सभी चीज़ों के बारे में बड़ी बारीकी से जानता था. उसे पूरी नॉलेज थी उस घर की. बताया गया कि वहाँ पर टेबल के ऊपर एक बड़ा सा फ्लोर्स का बाउल रखा हुआ था, बुके रखा हुआ था. वहाँ पर एक, हम कह सकते हैं वहाँ पर एक बुके रखा हुआ था. होरेस फेल्ट इज नोज टिकल. होरेस को अपनी नाक में हल्की सी टिकल गुदगुदी महसूस हुई. ही गेव लिटिल स्नीज. उसने उसे हल्की सी छींक आई एंड देन पुट डाउन हिज बैग. अपना बैग वहाँ पर रख दिया. उसने अपने टूल्स को अरेंज किया और उसके पास अपना काम ख़त्म करने के लिए 4 घंटे थे. 4 घंटे क्यों थे? बिकॉज आफ्टर 4 आवर्स द सर्वेंट वुड रिटर्न. नौकर लौट आते. द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन. द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन. तिजोरी जो थी तिजोरी नहीं थी. आई एम सॉरी, थोड़ा सा पेज हमारा आगे भाग गया. आई एम सॉरी. लेट्स से अगेन, दोबारा देखते हैं. द सेफ वाज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन. तिजोरी खोलना ज़्यादा मुसीबत पैदा करने वाली नहीं थी. ज़्यादा मुश्किल उसे खोलने में समस्या उसे नहीं आई. तिजोरी को खोलने में उसे ज़्यादा समस्या नहीं आई. आफ्टर ऑल ही हैड लिव्ड विद लॉक्स एंड सेव्स ऑल हिज लाइफ. The burglar alarm was poorly built. He went into the hall to cut its wire. He came back and sneezed loudly as the smell of the floors came to him again.
उससे समस्या क्यों नहीं आई? बिकॉज हिज प्रोफेशन वाज टू मेक लॉक्स। उसका प्रोफेशन क्या था? लॉक बनाना था। उसने मेरा सारा जीवन इन्हीं में बिताया था। और जो बर्गलर अलार्म थी, जो चोर घंटी थी, वो भी बहुत ही घटिया थी। सो उसने क्या किया? ही वेंट इनटू द हॉल टू कट इट्स वायर्स। जैसा कि हम जानते हैं कि वो चोरी करने से पहले चोरी वाली जगह की अच्छे से पूरी बारीकी से उसका मुआयना करता था। सो हाल में जाकर उसने उसकी वायर्स को काटा। ही केम बैक एंड स्नीज लाउडली। वो वापस आया तो उसने जोर से छींका। क्यों छींका? बिकॉज ऑफ द स्मेल ऑफ द फ्लोर्स। हाउ फुलिश पीपल आर व्हेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स, हॉरेस थॉट। हॉरेस सोचता है कि लोग जो हैं कितने मूर्ख होते हैं। Again a little bit problem we are facing, so please don't worry. Yes, this passage we are going to read. Yes, this one. What he says, how foolish people are when they own valuable things. भी लोग कितने मूर्ख होते हैं जब वो बड़ी कीमती चीज़ अपने पास रखते हैं। Horace thought. A magazine article had described this house, giving a plan of all the rooms and a picture of this room. एक मैगजीन के आर्टिकल ने, आर्टिकल होते हैं लेख जो आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, आर्टिकल्स आते हैं। एक मैगजीन, एक पत्रिका के आर्टिकल ने इस घर के बारे में पूरी डिटेल में बताया था। गिविंग ए प्लान ऑफ ओल्ड हाउस, रूम्स एंड ए पिक्चर ऑफ दिस रूम। इस पूरे घर के बारे में, पूरी योजना के बारे में, इस घर की पूरी के बारे में, इस घर के बारे में पूरी तरह बताया था, इसकी योजना के बारे में समझाया था, और इस घर की जो पिक्चर थी उसके बारे में बताया गया था। राइटर हैड इवन मैंशन दैट द पेंटिंग हेड इज सेफ। और राइटर ने तो यहाँ तक मेंशन कर दिया कि इसके पीछे एक तिजोरी छिपी हुई थी। मतलब चोरों के लिए रास्ता राइटर ने अब उस पिक्चर में, राइटर ने अपने उस आर्टिकल में क्लियर कर दिया, छिपाने की वैल्यू को ख़त्म कर दिया। बट होरेस फाउंड दैट द फ्लोर्स वर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क। हिंडरिंग हियर मीन्स क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस। क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस। यस। अब होरेस को लगा कि जो फूल थे उसके कार्य में बाधा पहुंचा रहे थे। ही बरीड हिज फेस इन हिज हैंडकरचीफ। उसने अपना चेहरा रुमाल में छुपा लिया। देन ही हर्ड ए वॉइस से फ्रॉम द डोर वे, व्हाट इज इट। अचानक से उसने डोरवे में एक आवाज सुनाई, एक आवाज सुनी। व्हाट इज इट, वो क्या है? व्हाट इज इट? ए कोल्ड और है फीवर? कोल्ड या फिर है फीवर? Before he could, Horace said, "Hey fever," and found himself sneezing again. इससे पहले कुछ सोच सकता होरेस ने जवाब दे दिया। Horace replied. Horace listened a voice, and what was the voice? What is it? A cold or hay fever? And before Horace could think, he replied. What he replied? Hay fever, and sneezed again. अब होरेस वहाँ चोरी करने के लिए गया हुआ है और आप देख सकते हैं कि वो यहाँ पर गलती कर बैठा। द वॉइस वेंट ऑन। आवाज़ फिर से आई। यू कैन क्योर इट विद ए स्पेशल ट्रीटमेंट, यू नो, इफ यू फाइंड आउट जस्ट व्हाट प्लांट गिव्स यू द डिजीज, आई थिंक यूड बेटर सी ए डॉक्टर इफ यू आर सीरियस अबाउट द वर्क। आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ। कि आप इसका, यू कैन क्योर इट, आप इसका ठीक कर सकते हैं, इसका इलाज कर विद स्पेशल, एक विशेष ट्रीटमेंट द्वारा, एक विशेष ट्रीटमेंट से इसका इलाज कर सकते हैं। यू नो, जैसे कि आप जानते हैं, इफ़ यू फाइंड आउट जस्ट व्हाट प्लांट गिव्स यू द डिजीज़, यदि आप पता लगा सके कि कौन से प्लांट आपको ये डिजीज़ प्रदान कर रहे हैं, आई थिंक मेरे विचार से यू बेटर सी ए डॉक्टर, आपका एक डॉक्टर से मिलना ज़्यादा बेटर रहेगा। इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, यदि आप अपने काम के प्रति ईमानदार है ना, तो आप डॉक्टर से मिलना ज़्यादा बेटर है। हाँ, बात सही कह रही है बेटा ये। डियर स्टूडेंट्स, ही वाज सेइंग, ही और शी इज सेइंग वेरी क्लियरली
आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ, मैंने अभी अभी आपको अपने घर की छत से सुना कि आप चोर हैं और चोरी के काम में ऐसी चीज़ें आपको परेशानी पैदा करेंगे और इससे बचना है तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए. Thank you. The rest of the part we read later.